Beloved God, help us all to love you more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba to all, loving Jai Baba to all. This is the book we are reading, and Meher Baba's early messages to the West. Now we have almost completed the part of the book, and we are reading appendix. Now we are reading appendix 4, and last time we had stopped on page number 320. So I'm requesting to do the screen presentation. And yeah, that is September 3, 1933, Herbert and Davy to J. Graham Phelps Stokes. Yeah. Betty, would you like to read? Jai Oh, Baba? sure. So just read paragraph wise, or one or two paragraph. Let them make spell it in Hindi in short. Then move to the other paragraph. All right. So I That is start. yeah, Jai Baba. Thank you. This Okay. presentation, yeah, yes, perfect. September Fine. 3. Yeah, Yes. this is All the right. one we have to read. September 3, 1933, Herbert Davy to Graham Phelps So Stokes. good. Okay. I'll read a couple of paragraphs and then wait. September 3rd, 1933. Herbert N. Davy to J. Graham Phelps Stokes. As the head of the Circle Editorial Committee, Herbert Davy followed up on the preceding exchange of communications between Graham Stokes and Norina Machiavelli. From the Stokes Papers. Dear Mr. Phelps Stokes, Norina handed me your cable in which you said you were unable to accept questions and answers or to join the Circle Editorial Committee. I am sorry, but appreciate your difficulty in accepting some of the statements and implications without a closer study or clearer proofs. I have come. Baba. Sorry, thank you. In between, I'll just narrate in Hindi. Yeah, because Okay. they are so, and it will be easy for me to also remember what is there. So ये पत्र जो है हर्बर्ट डेवी जो सर्कल एडिटोरियल कमेटी के मुख्य थे, इन्होंने ग्राहम फेल्प्स स्टोक्स को लिखा है, जिनको हमने पिछले सेशन में देखा है कि इनको रिक्वेस्ट की गई थी स्टोक्स को कि ये प्रकाशित करे इस किताब को, लेकिन उन्होंने मना किया था. उन्होंने कहा कि इनके कई सारे जो बाबा ने मुद्दे वहां पर उठाए हैं, इससे ये सहमत नहीं है. अगर इनको निकाला जाए किताब में से या इसको कोई इसमें बदलाव किया जाए तो ही वो करेंगे. और इसके संदर्भ में ये पत्राचार यहाँ पर है. और यहाँ पर ग्राहम स्टोक्स और नोरिना मैचबेली के बीच में जो पत्राचार इसके पहले हुआ था, इसको संदर्भित करते हुए हर्बर्ट डेवी जो मुख्य है सर्कल एडिटोरियल कमेटी के, वो स्टोक्स को लिखते हैं. इनकी भाषा देखो हर्बर्ट डेवी की, कई मुद्दों पर ये सहमत नहीं है. हम जैसे लोग होते तो तुरंत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन इन्होंने कितनी नम्रता से, विनयशीलता से, पोलाइटली और प्रेम से इनको हर बार रिएक्ट किया, वो हम देखेंगे. तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि प्रिय फिल्म स्टोक्स कि नोरिना ने तुम्हारी केबल मुझे दी है, और जिसमें कि आपने कहा है कि आप इसको स्वीकृत नहीं करते हैं क्वेश्चन आंसर छपाई के लिए, पब्लिशिंग के लिए, प्रकाशित करने के लिए. मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ, सराहना करता हूँ कि कुछ जो वाक्य है, सेंटेंस है, घोषणाएं उसमें की है, और इसका पूरा मुआवना किए बिना इसको प्रकाशित करना आपके लिए दिक्कत वाली बात है, तकलीफ वाली है, और ये इसकी मैं सराहना करता हूँ.
Yes, next I have come to an arrangement. Thank you. Okay, Baba. I have come to an arrangement with George Allen and Unwin's, the London publishers, whereby they will publish questions and answers when the time comes. I now have the material for Baba's biography, and they will publish that very soon. Meanwhile, their sister firm, the printers, are printing 5,000 copies of questions and answers. I expect to distribute privately 2,000 to 3,000 in England to those already interested in Baba. थैंक यू। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने ये जो लंदन की प्रकाशन कंपनी है जॉर्ज एलन एंड अनविन्स, तो इनके साथ भी मेरा संपर्क है और वो इस किताब को क्वेश्चन आंसर को प्रकाशित करेंगे जब समय आएगा, व्हेन द टाइम कम्स। तो वो कहते हैं कि मेरे पास बाबा का चरित्र भी है और वो भी जल्द ही हम प्रकाशित करेंगे। इसके दरम्यान इसके दौरान उनकी जो सिस्टर कंसर्न है प्रिंटर्स, ये 5,000 प्रतियां क्वेश्चन आंसर के करेंगे, ये प्रकाशित करेंगे, प्रिंट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3,000 प्रतियां इंग्लैंड में जो भी बाबा में इंटरेस्टेड लोग हैं इनको वितरित की जाएगी। देखो, ये जो किताब के बारे में, प्रकाशन के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में, पब्लिशिंग के बारे में जो कुछ है ना, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि बाबा का कार्य करते समय किस प्रकार से कार्य होना चाहिए। आज भारत में भी हम कई सारी किताबों का रीप्रिंट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, पुनः प्रकाशित करते हैं, पुनः मुद्रण करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे लिए एक सीख है और हमें जानने को भी मिलता है कि किस प्रकार बाबा के नजदीकी लोग, सर्कल के लोग उस समय कार्य करते थे। यस, थैंक यू बेटी। यस, इफ आई सेंड If I send you 2,000 or 3,000 copies to USA, could you assist us in distributing them to those people whose names are in the file and are interested in Baba? The actual printing cost, not including postage and commercial percentages, is 2 pennies. So the commercial price might be 4 pence to cover the cost of distribution or postage, etc. We may sell it at 3, I don't know what that is, 3 something when privately distributed, when commercially distributed at 5 or 6. फ्रेंड्स। या थैंक यू। तो ये यहाँ पर हर्बर्ट डेवी स्टोक्स को कहते हैं कि ठीक है, आप प्रकाशित नहीं कर रहे, प्रिंट नहीं कर रहे, कम से कम उसको वितरित करने के लिए हमारी मदद करो। यदि मैं तुम्हें 2 से 3,000 प्रति या अमेरिका में भेजता हूँ वितरित करने के लिए, तो क्या जो हमारे पास नाम है बाबा प्रेमियों के या बाबा में जिनको रुचि है, तो क्या इन लोगों को ये 2 से 3,000 प्रतियां आप अमेरिका में वितरित करेंगे क्या, ऐसा पूछा है। तो ये यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इसकी वास्तविक जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो, मतलब पोस्टेजेस और बाकी परसेंटेज मुनाफा को छोड़कर ये 2 पेनी है केवल। तो इसकी कमर्शियल प्राइस 4 पेनी होनी चाहिए। इसमें आपका वितरण का खर्चा आ जाएगा, पोस्टेजेस का खर्चा आ जाएगा। लेकिन हम इसको 3 पेनी में जब हम हर एक को पर्सनली भेजते हैं तो 3 पेनी में भेजेंगे, और जब हम कमर्शियली व्यावसायिक दिशा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब दुकानों से वगैरह, तो 5 से 6 पेनी तक हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर कोई दुकानदार अपने यहाँ किताब बेचने को रखता है तो वो भी अपना 1-2 कुछ रुपया उसके पीछे, हम जैसा कह सकते हैं, मुनाफा चाहता है। तो इतना इसमें, क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि ये कम से कम मुनाफे में, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में इसको बेचना है ये हमेशा, और वो कम से कम कीमत रखनी है, ये बाबा का आग्रह था। यस, नेक्स्ट प्लीज जय बाबा। यू कैन चेंज द पेज, या इफ आई रिक्वायर।
If I require it, this firm is willing to publish it now, but they want to charge eligible for a copy. Sri Meher Baba particularly instructed us to sell it at the lowest possible figure. Therefore, 3 pence is best. I will distribute it privately at this figure. When Baba speaks and the general public demands copies, the publishers, having the type already set up, will have reprints and take the distribution and selling of it for us. Yeah, thank you. So ये कहते हैं कि if I was willing to, तो कहते हैं यदि ये कंपनी अभी इसको प्रकाशित करेंगी, परंतु यहाँ पर एक कीमत दी है वो दिखाई नहीं दे रही पत्र में, तो इस कीमत में वो एक एक कॉपी को चार्ज करना चाहते हैं, परंतु बाबा ने व्यक्तिशः सूचित किया है कि कम से कम कीमत रखी जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 पेनी जो है ये सबसे अच्छी कीमत है, और ये कहते हैं कि जब मैं स्वयं इसको वितरित करूंगा तो मैं इसी कीमत पे ये बेचूंगा। जब when Baba speaks and the general public demands copies, अच्छा, हैव यू रीड दिस? जब बाबा कहते हैं और बाकी पब्लिक इसकी डिमांड करती है, जो ऑलरेडी टाइप हो चुकी है, खाली पुनर्मुद्रित करनी है, तो ये जो रीप्रिंट का काम है और वितरित करने का काम है, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग जो है, and take the distribution and selling of it for us. Okay. Yeah, okay. Yes. Several publishers have asked for the biography of Baba, but I shall give it to the same publisher, Allen and Unwin, who can also negotiate with their agents in New York for the American edition. I hope you will not object to my writing about this matter, and I hope you will help us distribute questions and answers to the friends of Meher Baba in America. This was Baba's wish and instruction, that is, that questions and answers should be distributed in America, and I hope you will help this work. Yours sincerely, Herbert N. Davy. थैंक यू बेटी। तो यहाँ पर ये हर्बर्ट डेवी लिखते हैं, ग्राहम स्टोक्स जो प्रकाशक है इसको, कि कई सारे प्रकाशक उत्सुक है बाबा का चरित्र छापने के लिए, परंतु मैं एलन एंड अनविन जो लंदन के हैं इन्हीं को दे दूंगा, और इनके जो एजेंट न्यूयॉर्क में है, तो अमेरिकन एडिशन के लिए हम उन्हीं के सिस्टर कंसर्न को ये बाबा की बायोग्राफी जो है वो प्रकाशित करने के लिए दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आपको कोई आपत्ति नहीं हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये वितरण जो है क्वेश्चन एंड आंसर का, ये बाबा के जो मित्र परिवार है अमेरिका में, इनको वितरित करने में हमारी सहायता करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये बाबा की इच्छा थी और बाबा ने सूचना दी थी कि क्वेश्चन एंड आंसर ये अमेरिका में वितरित हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम में आप हमारी मदद करेंगे, और आपका विश्वास है हर्बर्ट डेवी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्राहम स्टोक्स को पहले प्रकाशन का जिम्मा सौंपा था, उन्होंने मना किया, फिर भी उनकी मदद मांग रहे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें उत्तर में क्या कहते हैं, ये आगे का लेटर है, सितंबर 26, 1933 को। इस पत्र के जवाब में ग्राहम फेल्प्स स्टोक्स जो है हर्बर्ट डेवी को लिखते हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी। All right. Let's see. Okay. September 26, 1933. J. Graham Phelps Stokes to Herbert N. Davy. Stokes indicates that the basis for his objections to questions and answers are certain passages making spiritual claims on Baba's behalf from the Stokes papers. Dear Mr. Davy, I am sorry to have been so delayed in replying to your very kind letter, which was itself greatly delayed in reaching me.
I have been in the far west for some time and am just back. I am sorry, very sorry indeed, to be unable to aid in the manner proposed. Let's see, this is a long paragraph. Maybe I should Yeah, stop. I will first take the first page. Yeah. Yeah, okay. So I am also reading from here. That's better for me to. 26 सितंबर को ये पत्र लिखा गया है। तो इसकी पार्श्वभूमि यहाँ लिखी है। हर लेटर के पहले एक दो तीन लाइन में इस पत्र के पार्श्वभूमि भी यहाँ दी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड आंसर के कुछ जो मुद्दों पर, कुछ पैसेजेस पर जहाँ पर बाबा ने आध्यात्मिक क्लेम किया है, उद्घोषणा की है, तो इसमें इसके बारे में जो ऑब्जेक्शन था, आपत्ति थी स्टोक्स को, इसके बारे में स्टोक्स पेपर्स को इसमें लिखा है। तो ये कहते हैं कि प्रिय मिस्टर हर्बर्ट डेवी, मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आपका इतना सुंदर पत्र का उत्तर देने में काफी विलंब लगा। और क्योंकि मुझे ये पत्र बहुत देरी से मिला और मैं बहुत दूर पश्चिम में था कुछ समय के लिए और मैं अभी वापस आया हूँ। मुझे माफ करना कि वास्तव में बहुत ही देर से ये पत्र का उत्तर मैं दे रहा हूँ। Yes, next, Jay Baba, Betty, to Okay. be unable to aid in the manner. Yeah, I'm Yeah. very sorry indeed to be unable to aid in the manner proposed in the distribution of questions and answers in their present form. If certain omissions could be made of claims that Baba himself has expressly disapproved, and that I have abundant reason, I believe, to regard as highly prejudicial, I should be more than happy to do what I can to promote the distribution of the remainder. But I cannot disregard the light of my own conscience or accept anyone's statement of a more compelling authority than that. What the Baba is will sufficiently appear. I will not join any of my friends in making statements about him or claims for him that turn people from him and deprive him and his great message of the holy, respectful hearing both should have. Yeah. So यहाँ पर ये स्टोक्स कहते हैं कि मैं रियली इसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। और ये भी कहते हैं कि मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ क्योंकि आप जिस प्रकार की मदद इसमें वितरण के लिए मुझसे चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब प्रकाशन के लिए भी उन्होंने मना किया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वो मना कर रहे हैं और उसके लिए माफी चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप ये क्वेश्चन आंसर उसके अभी के प्रेजेंट फॉर्म में उसको वितरित करना चाहते हैं, इस प्रकार से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। सीधा मना किया है क्योंकि कुछ जो इसमें से मुद्दे हैं, सेंटेंसेस है, इसको आप निकाल दो। ऐसा मैंने आपको कहा था कि जो बाबा के दावे हैं, तो इसके लिए बाबा ने स्वयं मना किया था कि ये इसमें से निकालेंगे नहीं इन दावों को, एक्सप्रेसली डिसअप्रूव। तो इसके लिए मेरे पास काफी सारे कारण हैं कि मैं क्यों इसके वितरण में अपना हाथ नहीं बटाना चाहता हूँ। क्योंकि I believe to regard as highly prejudicial, I should be more than happy to do what I can to promote the distribution of the remainder. वो कहते हैं बट आई कैन नॉट डिसरिगार्ड। तो मैं तो खुश होता था इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन उसी समय अपना मेरा सद विवेक जो है, सद्भाव जिसे हम कहते हैं ना, मेरी सद विवेक बुद्धि के अनुरूप ये नहीं है, तो इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। साथ ही क्योंकि इनके जो दावे है, स्टेटमेंट है, इसको मैं सहमत नहीं, तो ये मेरी सद्विवेक बुद्धि के खिलाफ होगा, इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूंगा। और अगर बाबा जो कुछ है तो वो जो लोगों के सामने आएंगे ही, व्हाट इज बाबा इज विल सफिशिएंटली अपीयर। वो
पर्याप्त रूप से वो आएगा ही लोगों के सामने। साथ ही वो ये भी कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों के जैसा मैं बाबा के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं करूंगा, कोई क्लेम नहीं करूंगा, ना ही मैं लोगों को बाबा के विरोध में प्रोत्साहित करूंगा, या बाबा के पास जाने से मैं लोगों को रोकूंगा भी नहीं। दिस इज वेरी गुड ऑफ, मतलब इनका ये बहुत अच्छा ही है, वेरी गुड थिंग ऑन हिज पार्ट, कि ही विल नॉट डिप्राइव पीपल फ्रॉम गोइंग टू बाबाज, या लोगों के तक बाबा के मैसेजेस पहुंचने में वो कोई बाधा नहीं करेंगे। मतलब वो इसमें सहमत भी नहीं है, वितरण का कार्य भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा के खिलाफ वो स्वयं कुछ बोलेंगे नहीं, या लोगों को उनके पास जाने से, उनका मैसेज सुनने से कभी वो रोकेंगे नहीं। जी, जय बाबा। Okay. आई रेफर। My goodness, this is difficult. Yeah. I refer, of course, to the very many passages in questions and answers making, whether directly or by obvious implication, claims for the Baba of a sort that he himself has so expressly disapproved. May I refer you especially to his statement on page 17 of Questions and Answers that claims of the sort referred to have no value until substantiated and are needless when substantiated. Shall या, I stop or? नो प्रॉब्लम। Oh, This will go on like this yes. game. Wow, wow. And when you don't know the Hindi, but I will give you hint of the para, no problem. So, but एक बात है, but unfortunately these page numbers will not tally with our page numbers, and we cannot exactly say what is this point. I had thought of searching that, but Mm. it is difficult to. Definitely, he has the objection when Baba claims that he is avatar, he is God, and all those things. Maybe. So for Hindi, ये कहते हैं कि मैं कई सारे यहाँ पर मुद्दों को, पैसेजेस को जो क्वेश्चन आंसर में है, और जहाँ पर सीधा बाबा ने दावा किया है, या इस तरह से स्टेटमेंट्स किए हैं जो बाबा ने कहा है, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, और बाबा ने इनको निकालने के लिए भी अनुमति नहीं दी है। और यहाँ पर कई जगह इस पत्र में, आगे भी हम देखेंगे, स्पेसिफिकली उन्होंने वो प्यारा, वो पेज नंबर, वो मुद्दा मेंशन किया है कि इस प्रकार से दावे नहीं, जो कि है, have no value until substantiated। जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं है तो इसके कोई मौलिकता नहीं, वो कहते हैं। और इस प्रकार से मैं इन मुद्दों से सहमत नहीं हूँ, ऐसा ये प्रकाशक कहते हैं। तो उन्होंने वो मुद्दे भी दिए हैं, परंतु किसी प्रकार से मैं उसको ढूंढ नहीं पाई। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, जाहिर है कि जो बाबा कहते हैं थे कि मैं अवतार हूँ वगैरह, ऐसे मुद्दों पर लोग सहमत नहीं हुआ करते थे। क्लेम्स ऑफ दैट सॉर्ट, यस बेटी। Claims of that sort have been advanced in America, no less than elsewhere, on behalf of innumerable teachers, small as well as great. But substantiation has, in each case of late, been so notably lacking that continued reiteration of such claims in behalf of the Baba or anyone else prior to its substantiation has become not merely of no value, as the Baba expresses it, but the cause of needless resentment and prejudice of a sort that I cannot think as any true friend of the Baba's could possibly wish to subject him to. यहाँ पर वो कहते हैं कि इस प्रकार से दावे और प्रदेशों में भी कई सारे गुरु, अपने आप को गुरु कहलाने वाले कई सारे लोग बाकी जगह जैसा है वैसे अमेरिका में भी है,
इन्यूमरेबल टीचर्स, कई सारे गुरु भी इस प्रकार का दावा करते हैं, जो छोटा गुरु हो बड़ा गुरु हो, इस प्रकार का दावा वो भी कहते हैं कि हम भी ईश्वर है, हम भी अवतार है। ये तो बाबा ने भी जाहिर किया था कि ऐसे दावे करने वाले की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से जो दावे बाबा ने किए हैं, तो इसको हम कैसा सही मानेंगे कि किसका दावा सही है? हर कोई कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का अवतार हूँ, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हैज बिकम नॉट merely ऑफ नो वैल्यू एज द बाबा एक्सप्रेस इट। तो इसके कोई वैल्यू नहीं है, बट द कॉज ऑफ नीडलेस रिजेंटमेंट। तो इसमें कई सारे प्रतिकार होगा, रिजेंटमेंट होगी, इसमें प्रिजुडाइस, मतलब पहले से जो हमारा मत बना है, प्रिजुडाइस माइंड जिसको कहते हैं। तो बाबा के जो मित्र है वो कहते हैं, आई कैनॉट थिंक एनी ट्रू फ्रेंड ऑफ द बाबा कुड पॉसिबली विश टू सब्जेक्ट हिम, ऐसा नहीं चाहेगा, यहाँ पर वो कहते हैं। I यस, हाँ, थैंक यू। I shall be more than happy to do everything in my power to aid in the accomplishment of the one supreme task of all the great teachers, which, as the Baba so clearly expresses it, in referring to his own mission, is to make mankind realize, not merely through the intellect, but by actual experience, the one infinite self which is in all, which is in fact is all. But I will not participate voluntarily in clouding so great an issue or in spreading further needless misunderstanding and resentment against wonderful people who devote their lives to this cause. वो कहते हैं कि मैं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, ये महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए, और सभी महान गुरुओं के लिए मैं तो खुश होता हूँगा कि जो बाबा ने स्वयं साफ साफ कह दिया है कि उनका जो है, in referring to his own mission is to make mankind realize, इनका जो महान कार्य जो बाबा ने स्वयं साफ साफ शब्दों में कहा है कि पूरी मानवता को एक आध्यात्मिक उच्च स्तर पर ले जाने का ये अनुभव केवल बुद्धि से नहीं परंतु वास्तविक अनुभव से, जो ये अनंत एक है, वन इन्फिनिट सेल्फ, जो हम स्वयं ही है, विच इज इन ऑल, जो सब में है। आगे ये कहते विच इन फैक्ट इज ऑल, जो ये एक ही ईश्वर सब में है और वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। परंतु ये कहते हैं आई विल नॉट पार्टिसिपेट वॉलेंटरीली, मैं स्वयं स्वफूर्ति से इसमें हिस्सा नहीं लूंगा कि इतना बड़ा ये मैटर है, इशू है। इस प्रकार से आगे और कोई गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रतिकार इसमें, ये रिजेंटमेंट, ऐसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने अपना जीवन इस कार्य के प्रति समर्पित किया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैं उनके तक नहीं ले जाना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब साफ शब्दों में उन्होंने अपना ये बयां किया है कि मैं ये इसमें अपने हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसका कारण भी दिया है। He is very clear. Yeah, next page please, 323. With very best regards. Yeah, that's the concluding part of the letter. With very best regards to all, including the very dear friends who differ so greatly from me with respects to this matter, I am very sincerely yours, J.G. Phelps Stokes. तो वो कहते हैं सबको जैसा उन्होंने पत्र पूरा किया वो बहुत क्लियर है, साफ है, मतलब ऑनेस्टली लिखा है, जो ऐसे बाबा भी चाहते थे, इसको पसंद करते थे इस प्रकार के ऑनेस्टली, कि जो उनके मन में आया वही वो बयां कर रहे हैं। तो सबको रिगार्ड करके अपने दोस्तों को भी, भले वो डिफर है,
वो अपना लेटर को यहाँ पूरा किया, जे जी फिलिप्स स्टोक्स करके। तो आगे अब 16 अक्टूबर 1933 का ये पत्र है। हर्बर्ट डेवी लिखते हैं वापस इस पत्र के, जो अभी हमने पत्र लिख देखा, इस पत्र के उत्तर में अब हर्बर्ट डेवी उनको पत्र लिखते हैं, वो आगे हम देखेंगे। बेटी, would you like to continue? Sure. Yeah, please. October 16th, 1933. Herbert N. Davy to J. Graham Phelps Stokes. Herbert Davy requests Stokes' detailed criticisms to be utilized in a forthcoming second edition of Questions and Answers from the Stokes Papers. Dear Mr. Phelps Stokes, thank you for your letter of 28 September. I do appreciate your point of view and quite understand your decision. But I should like to know in greater detail the statements to which you take exception. Would you mark them in a copy of the booklet and send to me with any comments which I can show to Baba and for the editorial committee? Should I stop there? थैंक यू। यहाँ सो यहाँ पर हर्बर्ट डेवी उनको लिखते हैं कि आपने जो भी आपत्ति जताई है इस किताब के ऊपर, या आपका जो क्रिटिसिज्म है, टीका है, टिप्पणी है, तो आगे की जो हमारी आवृत्ति रहेगी इस किताब की, इसमें हम इसका जरूर देखेंगे। आगे वो कहते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं अपने लेटर के लिए, सितंबर 28 लेटर के लिए। और वो कहते हैं कि मैं सराहना करती हूँ कि आपने इतना साफ तरीके से अपने मुद्दों को रखा है। आपका निर्णय का मैं आदर करता हूँ, मैं समझता हूँ, परंतु ये भी मैं चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि ये जो इसमें आपने आपत्ति जताई है उन सब पर ध्यान से देखने के लिए, टू विच यू टेक द एक्सेप्शन, कि जिसके बाबत आपका आपत्ति है उसको और ध्यान से देखने के लिए मैं आपके विनती करता हूँ। वुड यू मार्क देम इन अ कॉपी ऑफ द, तो मैं आपको एक कॉपी भेजता हूँ, और ये क्वेश्चन आंसर की कॉपी में जहाँ जहाँ आपको आपत्ति है और जो जो आप बदलना चाहते हैं, तो आपके कमेंट के साथ आप इस कॉपी को मुझे वापस भेजिए, उसी पर लिख के जो जो कमेंट है, जो जो आपत्ति है, और मैं ये जो आपकी पास से आई हुई कॉपी है, जिस पर उनको जिस जिन मुद्दों पर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, जो भी सुधार करना चाहते हैं, जो भी उनकी कमेंट है, इसके साथ ये कॉपी आप वापस भेज दिए, तो मैं बाबा को ये कॉपी दिखाऊंगा और एडिटोरियल कमेटी को भी दिखाऊंगा। मीन्स वेरी ओपन फ्रॉम हिम हिज साइड ऑल्सो, कोई भी अड़ के नहीं है, नो ईगो कि नहीं मेरा ही मुद्दा, आई एम ओनली राइट, नथिंग लाइक द सॉर्ट ऑफ। यस, जय बाबा। We have other suggestions also, and a new edition will be required before Christmas to embody 5 new questions and a few alterations elucidating certain points without making extreme corrections. We have disposed of nearly 4,000 copies already, but some of these are allotted to USA. तो Should I यहाँ go पर वो कहते हैं हमारे पास और भी कुछ सुझाव आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, और क्रिसमस के पहले ये आ जाएंगे। अब जो नई प्रिंट होगी इसमें हम और 5 एडिशनल सवाल जवाब भी इसको इंक्लूड करेंगे। कोई ज़्यादा करेक्शंस इसमें नहीं आएगा, और हमने ऑलरेडी 4,000 प्रतियां जो है वो भेज दी है, बट सम ऑफ दीज आर अलॉटेड टू, इसमें से कुछ जो है अमेरिका के लिए है। यस, The enclosed leaflet explains the work of the Circle Editorial Committee. We need a representative for the East Coast of U.S. America.
We have much work in hand. The translations are completed and publishing contracts drawn up, but some of these are held up pending further financial aid. The cost of an edition of 3 to 4,000 copies is from pounds, 34 pounds to 45 pounds. I hope that's right, pounds. German and French arrangements are nearly completed. The German is settled. Yeah. Other, yeah, okay. तो ये कहते हैं कि इसके साथ में सर्कल एडिटोरियल कमेटी का एक लिफलेट भेजा है जिसमें सर्कल एडिटोरियल कमेटी का पूरे कार्य के बारे में लिख दिया हुआ है और हमें अमेरिका में पूरब का किनारे में कोई चाहिए हमारी मदद करने प्रतिनिधित्व करने वाला और हमारे पास बहुत ही काम है अभी बाकी कई सारे ट्रांसलेशंस है और उनका प्रकाशित करना है और इस तरह से सम ऑफ दिस आर हेल्ड अप परंतु इसमें से कुछ काम जो है हमें आर्थिक मुद्दे के कारण हमें रोकना पड़ा है और इसमें जो है जो अभी एडिशन आएगी 3 से 4 हजार प्रतियों की इसमें कीमत करीब करीब 3445 पाउंड में जाएगी और ये हम जानते हैं कि बाबा ने ये इच्छा प्रदर्शित की थी कि अधिकाधिक भाषाओं में क्वेश्चन आंसर भाषांतरित किया जाए और हमने देखा भी कि कई विभिन्न भाषाओं में तभी इसको ट्रांसलेट किया था अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जर्मन और फ्रेंच अरेंजमेंट्स जो है जर्मनी भाषांतर फ्रेंच में तो ये करीब करीब पूरा हो गया है जर्मन का सेटल हो गया है Other books are also to be published this autumn and spring of 1934. Baba's visits to London, 2 weeks, has been a great success. Many new contacts and many interesting people have been drawn to Baba, and he has done much work in London. तो यहाँ पर एक मजे की बात है सी व्हाट अ ब्यूटी सी ही हैज नॉट माइंड दैट ही हैज ऑब्जेक्टेड मेनी सेंटेंसेस ऑफ बाबा's claims he is not ready to do work in spite of that how lovingly he is sharing with him about Baba's visit and people gathering there and all that no it's beautiful anyway so यहाँ पर वो लिखते हैं कि बाकी भी काफी सारी किताबें अदर बुक्स नॉट काफी सारी बाकी भी किताबें हैं ये अभी ये ऑटम में स्प्रिंग गर्मी तक और 1934 के इसमें तक ये प्रकाशित हो जाएगी और बाबा ये बाबा को बाबा की भेंट के बारे में भी उनको लिखते हैं ये उनमें मन में खटास नहीं रखी कि इन्होंने हमारे काम को मना किया बावजूद वो बाबा की लंदन की भेंट के बारे में उनको बता रहे हैं कि 2 हफ्ते बाबा ने लंदन में भेंट की और ये बहुत सक्सेसफुल हुई काफी सारे नए संपर्क प्रस्थापित हुए हैं काफी लोग जो है बाबा में इंटरेस्टेड है बाबा की तरफ खींचे आए हैं आकर्षित हो गए हैं और काफी सारा काम अभी लंदन में भी करना है आई I hope that later I shall have an opportunity of meeting you. I have heard so much about you from several of Baba's followers. If you can let me know your suggestions for the new edition as soon as possible, I shall be grateful. But Baba himself will authorize certain minor corrections for the new edition before he leaves for India. With best wishes, yours sincerely, Herbert N. Davy. तो वो कहते हैं देखो कितना मतलब सुंदरता से ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है ईगो इशू नहीं है कितना अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया है कि वो कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने की अवसर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे बाबा प्रेमियों से भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और ये कहते हैं कि आपकी जो सूचनाएं हैं सजेशंस है सुझाव है नई प्रति के बारे में तो इसको आप हमें बताएंगे तो अच्छा है जितना जल्द से जल्द बताएंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे साथ ही वो कहते हैं लेकिन
ये सब जो है ये बाबा ही स्वयं तय करेंगे कि ये छोटा हो बड़ा हो, जो सुझाव है या करेक्शंस है नई एडिशन में, तो ये सब बाबा के ऊपर निर्भर है। बाबा भारत के लिए जाने के पहले बाबा ही स्वयं ये तय करेंगे कि इन सुझावों पर काम करना है, उसको स्वीकृत करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पर उन्होंने अपना पत्र समाप्त किया, हर्बर्ट डेवी। आगे अब ये बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण पत्र है। 6 नवंबर 1933 में को बाबा ने स्वयं ये पत्र हर्बर्ट डेवी को लिखा है। All right. November 6, 1933. Meher Baba to Herbert Davy. Writing through Chanji's from the Viceroy of writing through Chanji from the Viceroy of India during his return to India at the end of his 6th Western tour, Baba conveys instructions concerning the additional material to be incorporated into the second edition of Questions and Answers. For a facsimile of the original, see page 58 from Kitty Davies' papers. My dearest Herbert, I am sending the answers to the questions we had discussed about in Madrid. I have dictated them almost word by word. You may make alterations and additions and change the language and phraseology, but retain the sense. You need not send it to me for approval, as that would take too much time, but print it, sticking strictly to the original sense. All my love, signed M.S. Irani. या तो बाबा हर्बर्ट डेवी को लिखते हैं यहाँ पर चांजी के मार्फत, चांजी ने ये बाबा के लिए लेटर लिखा है। और यहाँ पर जो 6वीं वेस्टर्न टूर है बाबा की, उसके अंत में ये लिखा है। बाबा कुछ सूचनाएं यहाँ दे रहे हैं कि जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर 5 उसमें सम्मिलित करने वाले थे दूसरी आवृत्ति में, इसके बारे में बाबा ने कुछ सूचनाएं दी थी। ये हम जब किताब पढ़ रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको, इन्होंने जो पेज नंबर 58 कोट किया है, तो किताब में ये 58 नंबर का पेज है, जहाँ पर किटी देवी के इसमें से ये ओरिजिनल पेपर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका रेफरेंस उन्होंने दिया है। यहाँ पर बाबा लिखते हैं, माय डियरेस्ट हर्बर्ट, ऐसा बाबा ने उसको ये किया है पत्र में। बाबा यहाँ लिखते हैं, जो मैड्रिड में हमने जिसकी चर्चा की थी, तो वो एडिशनल जो 5 सवाल जवाब थे, ये मैं भेज रहा हूँ। मैंने इनको स्वयं डिक्टेट किया है, एक एक शब्द मैंने स्वयं डिक्टेट किया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको चाहिए तो आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ एडिशंस कर सकते हैं, कुछ भाषा में बदल करना है, तो कुछ फ्रेजेस चेंज करना है, तो आप इसको बदलाव कर सकते हैं, परंतु जो उसको कहना है, उसका सार है, गर्भित है, उसका इसेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। हमेशा बाबा ने ये स्वातंत्र्य दिया था कि आप भाषा में बदलाव करना है तो करिए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए प्रति बाबा आग्रही थे। ऑलवेज बाबा gave them independence, that you can use the language if you whatever you want, but it should not be change the essence of it, इसका सेंस नहीं चेंज हो जाना चाहिए। तो यहीं पे बाबा वापस कह रहे हैं। और यदि आप कुछ बदलाव उसमें करते हैं, कुछ एडिशंस करते हैं, तो वापस अप्रूवल के लिए मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। परंतु इसको प्रिंट कर लो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द ओरिजिनल, जो मूल है, इसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं।
ऑल माय लव, बाबा अपना प्रेम दे रहे हैं, MS ईरानी। आगे अब जे ग्राहम स्टोक्स जो है हर्बर्ट डेवी को लिखते हैं, 14 नवंबर 1933 का पत्र हम देखेंगे जी। November 14th, 1933. J. Graham Phelps Stokes to Herbert N. Davy. Along with his annotated copy of Questions and Answers, Stokes, as requested, sends criticisms of certain statements in the book from the Stokes Papers. Dear Mr. Davy, I greatly appreciate your exceedingly kind letter of October 16th and your courtesy in sending me a copy of the little booklet entitled Questions and Answers, and in inviting me to return the booklet to you with my comments marked upon it. थैंक यू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर की जो कॉपी इन्होंने अपने रिमार्क लिख के वापस भेजी है, और इसमें उनकी जो भी टीका टिप्पणी है कुछ मुद्दों पर किताब को, वो भी वो भेज रहे हैं वापस, जैसे कि हर्बर्ट डेवी ने उनको लिखा था। तो यहाँ वो हर्बर्ट डेवी को लिख रहे हैं, ग्राहम स्टोक्स, और लिखते हैं कि जिस प्रकार का आपने पत्र मुझे भेजा है उसके लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ आपके 16 अक्टूबर के पत्र की, और आभारी हूँ कि आपने इसमें एक प्रति जो मुझे भेजी इस बुकलेट की, क्वेश्चन आंसर की, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एंड इनवाइटिंग मी टू रिटर्न, और इसमें मेरे कमेंट सुझाव लिख के जो आपने मुझे लिखने के लिए कहा है, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। As I advised. Okay. As I advised Norina some months ago, when this material in typewritten form was first submitted to me, there was much in it to which I could not possibly subscribe. As you will discover, my comments, as indicated in the booklet, are quite numerous. वो कहते हैं कि जैसे नोरीना मैचबेली ने कुछ महीने पहले मुझे बताया था कि ये जो मटेरियल, टाइप रिटन मटेरियल नोरीना मैचबेली ने उनको भेज दिया था उनका प्रकाशित करने की रिक्वेस्ट के साथ, तो जो मुझे भेजा था इसमें कई सारा जो था कि जिससे मैं सहमत नहीं था। और अभी भी आप देखोगे कि मैंने कई जगह टीका टिप्पणी की है, और कई सारे ऐसे कमेंट्स आपको इस बुकलेट में मेरे दिखाई देंगे। Personally, I feel very strongly that the booklet in its present form would be prejudicial to the Baba cause if circulated in America without material amendment. It abounds in claims of the precise sort that Baba himself has declared unequivocally to be valueless. Certain statements, as for instance, lines that I have struck out in the committee's answer to question 37, impress me as being actually untruthful. The footnote 119. Of course, nothing but truth was intended by the committee, but I am convinced that they inadvertently have stated untruths in this and numerous other instances. I cannot understand how the Baba could permit so many inaccurate statements to be made on his behalf. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 37, first we'll read that question and its answer, and then we'll come back to this paragraph. That is okay for all, hope so. So a question number 37, what was that question? So the question was, why does he keep changing his plans and postponing his promises of healing? This was the question. बाबा का मूल प्रश्न जो था, क्वेश्चन नंबर 37 को जो इनकी आपत्ति है
तो ये पहले हम पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न था कि बाबा हमेशा अपनी योजना प्लान क्यों बदलते रहते हैं और लोगों को मदद करना क्यों आगे बढ़ाते पोस्टपोन करते हैं। तो इसके उत्तर में बाबा ने दिया था, द आंसर वाज, although he seems to change his plans and apparently does not keep his promises about the dates of his speaking and healing, etc., in reality it is not so. For as a perfect master and avatar of the age, he knows all that is to happen in future, and everything is planned and arranged by him beforehand. Although he really knows when he is destined to speak and heal, he postpones the dates from time to time in order to give greater force to his final workings, and in order also that all that he has planned during these past years will be revealed fully on the day of his manifestation. Actually, if we see minutely, you see Bluebus tour, you see any period, Meherashram, Premashram, everything is already planned, designed. He knows. Susan, the writer of Bluebus tour, she has given a very good sentence. She says, he knows very well what is ahead, but he do not declare it for his devotees or mandal. And I really fully agree. This is my actually personal, what I understand from Baba's. Always we have this in our mind that Baba keeps changing his plans abruptly. He do not declare it. Now I want to ask all of us, whoever are present here, do you also think so? Please raise your hands. Yeah, thank you, Mr. Prakash. Anyone else has this doubt in the mind that Baba changes the plans or do not tell and all that? What I understand after what Baba made me understand about this is that I will really like to share. He knows everything as it is cleared here. He knows the plan because it is made by him. In his mind, the steps, process, plan is very clear. He knows tomorrow he will go to this place. He will close the ashram. He will shift the ashram. He knows everything. He has planned chalked out perfectly. But he is not disclosing his plans to his mandali and devotees because he wants them to live in present, in now, to be ready for anything happens abruptly, 11th hour, to obey him in all the situation. He is preparing them. This is their spiritual training, we can say. In a way, he wants them to live in present. If he already tells them this is how we will live in a palace, we will live under a tree, we will live on a platform, or he tells in advance, then they will look for that event. But that he does not want. He wants them to concentrate only on him for the spiritual reasons, because it is his duty to eradicate or minimize their sanskaras and increase their spiritual sanskaras. It is his duty to eradicate their sanskaras, and through these things he was working on them. He is least bothered about who says what about him and what. Take, for example, the example of building a cinema house in Nasik. Tell me any guru, any teacher, whether in America or India, spiritual teacher, will he dare to do these things? To build a cinema house, asking his mandali to construct it. Padri was called from Mehrabad
to construct cinema house in Nasik. It is constructed by Mandali. And hats off to his Mandali. They never thought that we have come here for Baba and spirituality and meeting God. And what he is asking to build it a cinema house, a worldly matter. They never thought it. This is outstanding, uncommon. We think that he was changing plans. No, it was part of his plan. Because he wanted to accept him as he is. To be ready at all time, to be on their toes, to obey him. Do you agree? Anyone agree with this? Thank you. It's beautiful. Thank you. So it is, we think that he was changing the plans and it was abrupt and there was no plan. No. He had everything in his mind, but he was not disclosing. It was part of his spiritual training. So anyway, so this Hindi part I will come to. तो यहाँ पर बाबा का चेंजिंग प्लान्स के बारे में उत्तर जो बाबा ने दिया था, अभी ऐसा हमें लगता है कि बाबा अपने प्लान बदलते हैं और ऊपर ऐसा दिखता है कि वो अपने वचन निभाते नहीं हैं। और जो बाबा ने कहा है कि मौन तोड़ने के बारे में बाबा ने हमेशा डेट्स बदली है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी उत्तर यही दिया, वास्तव में ऐसा नहीं है ना। अगर छोटा बच्चा है तो मम्मी डैडी उसको कैसे समझा, हाँ बेटा करेंगे, हाँ कल करेंगे, परसों जाएंगे, गार्डन जाना है, कैसे समझाते हैं। तो ये हमारे पिता है, ये जानबूझ के हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मंडली जन से बर्दाश्त नहीं होता होगा अगर बाबा कहते थे कि मैं कभी नहीं बोलूंगा। If Baba would have told that I will never speak, Mandali would not be able to tolerate it. So he had to keep changing the dates, give the future dates. As it is for avatar and God, there is no time and there is no space. So question of breaking the promise do not arise. तो इस तरह से ऐसे नहीं है। जो भी सदगुरु है, उस युग के अवतार है, उनको सब पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये सब उनकी योजना होती है और ये सब पहले से ही तय होता है कि ये अरेंजमेंट जो है बिफोर एंड होती है, सब कुछ तय होता है कि कब करना है, कैसा करना है, वो जानते हैं। वो जानते हैं कि वास्तव में वो कब बोलने वाले हैं और फिर भी वो समय समय पे अपने बोलने की तारीख बदलते रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य है उसको वास्तव में प्रभावशील करने के लिए, in order also that all that he has planned during the past years will be revealed fully on the day of initiation. जब उसका प्रगटीकरण होगा, जो उन्होंने योजना बनाई है, उस समय ये सारा फुलफिल होगा, ये वो जानते थे। और जैसे कि अभी मैंने बताया है कि बाबा को सब कुछ पता होता था, उनका प्लान तो पक्का होता था, लेकिन वो मंडली जन को नहीं बताते थे। उनको एंड टाइम में बोलते थे, उनके लिए बदलाव करते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मंडली जन भविष्य में नहीं रहे, कि अभी में रहे, अभी में जिए, सतत तत्पर रहे बाबा की आज्ञा का पालन करने का। ये उनका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का हिस्सा था। जी, मिस्टर प्रकाश हैज रेज हैंड, फर्स्ट वी टेक दैट, देन वी गो अहेड। No, I didn't raise hand, but I was just saying, Baba also has given similar hints, right? I mean, he basically said when you go to a doctor and doctor knows that you won't be cured very well in next 20 days, but he keeps saying you will get better tomorrow, you will get better tomorrow. So that's the kind of hope he gives, so you can forget about it and, like you said, live in the moment, live in the present. So beautiful, actually. Thank you. Lovely explanation you gave. Yeah. Jai Baba. Thank you, Mr. Prakash. Yeah, perfectly said. Baba used to say, Baba had given this example of doctor. Yeah.
Yeah, now coming back to this paragraph, तो ये कहते हैं कि व्यक्तिशः ये ग्राहम स्टोक्स का लेटर है और डेवी को लिखा है, और वो कहते हैं कि व्यक्तिशः में मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का बुकलेट इस अभी के रूप में प्रकाशित करना, अमेरिका में इसको वितरित करने का ये संभव नहीं, इसमें काफी सारे सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिशः मानना है। और इस प्रकार से जो बाबा ने दावे किए हैं इसकी कोई कीमत नहीं, ये सब व्यर्थ दावे हैं। और कुछ जो स्टेटमेंट्स उनके हैं तो इन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया है, ये 37 नंबर का स्टेटमेंट बाबा के प्लान का बदलता रहने का। और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं है, ऐसा इनका मानना है। वो आगे ये भी कहते हैं, ऑफ कोर्स nothing but truth was intended by the committee. So, but I am convinced that they inadvertently have stated untruths. वो कहते हैं कमिटी की से ये उम्मीद थी कि वो केवल सत्य ही कहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं कहा है काफी सारे मौके पर। और वो बाबा वो कहते हैं आगे कि मुझे आश्चर्य मैं ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि इस प्रकार से जो सही नहीं है ऐसे स्टेटमेंट कहने के लिए बाबा ने अनुमति कैसे दी, उनकी तरफ से ऐसे इनएक्यूरेट स्टेटमेंट करने के लिए बाबा ने अनुमति कैसे दी, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। वास्तव में जो सामान्य मनुष्य है इसकी समझ के परे ये विषय है। कई सालों तक मेरे भी दिमाग में ये घूमता था कि क्या, पर अचानक एक दिन ये ब्लू बस पढ़ते समय मुझे ये एकदम बाबा ने, हम कह सकते हैं कि फ्लैश जैसा दिमाग में प्रकाश डाला। हो सकता है आपके भी दिमाग में अभी भी कुछ है तो ये बाबा ही उसको सॉल्व करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, हम बाबा पर प्रेम करते हैं, हमारा बाबा पर अटल विश्वास है, जो बाबा कहते हैं वही सही, ये गलत कभी हो ही नहीं सकता है। एक बार इस चीज को मान लेंगे तो आगे सारा रास्ता खुल जाता है, क्लियर हो जाता है। वो सब जानते थे कल क्या करने वाला है, कल क्या होने वाला है, लेकिन वो उजागर नहीं कर सकते। सपोज एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, और वो पब्लिक अपीयरेंस के लिए मतलब उसको नहीं करना है, उसको चाहता नहीं है कुछ स्टेज शो करना है या एग्जाम या स्कूल जाना है, और उसका वो टेंशन लेता है, तैयार नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं? आपको तो उसको स्कूल में भेजना है, उसको स्टेज पे गवाना है। आप क्या, आपको मालूम है आप यदि उसको कहेंगे कि कल तुम्हारा स्टेज शो है, तुमको ये पोएम बाय हार्ट करके टीचर को सुनानी है, पूरे क्लास को सुनानी है, या कल तुम्हारा एग्जाम है, कल तुम्हें स्कूल जाना है, और आपको पता है कि वो चाहता नहीं है, ये उसको पसंद नहीं है, वो अभी से बोलेगा कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे? उसको कुछ कहोगे ही नहीं उसके बारे में। ना ही आप कहोगे कि कल तेरी एग्जाम है, कल तुझे स्कूल जाना है, कल तेरा स्टेज, बोलोगे ही नहीं। और 11th आवर में आप उसको भेज दोगे। क्यों? उसके भले के लिए। सही है ना? तो ठीक इसी प्रकार से बाबा, बाबा के तो हम बच्चे हैं तो बाबा इसी प्रकार करेंगे। यस, नेक्स्ट ऑफ कोर्स। Okay. Of course, people are differently constituted, and perhaps some would be helped by the booklet in its present form. But I, for one, regard it as so exceedingly inaccurate and misleading that I could not possibly have anything to do voluntarily with its circulation. I hope the committee will revise it drastically before any more copies are made. Very sincerely yours, J. Graham Phelps Stokes. थैंक यू बेटी। तो ये कहते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी के रूप में ही ये किताब मददकारी होगा, फिर भी मैं तो इसमें ये जो इनएक्यूरेसी इसमें है, उनका पूरा विश्वास है कि ये इनएक्यूरेट है, मिसलीडिंग है, गलत बहकावा में देने वाला है या बहकाने वाला है। तो इस प्रकार से मैं तो इसमें स्व खुशी से इसके वितरण के लिए कोई मदद नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि मैं प्रकाशित भी नहीं करूंगा, पब्लिकेशन भी नहीं करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं कोई मदद नहीं करूंगा। ईमानदारी से उन्होंने अपना
मत रखा है। और वो कहते हैं आगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेटी को काफी सारे बदलाव ये कॉपी आगे की बनाने के पहले करने पड़ेंगे। और यहाँ पर उन्होंने अपना पत्र संपन्न किया है, समाप्त किया है, जे ग्राहम फेल्स्टॉक्स। यस। तो आगे एक बहुत सुंदर पत्र है, मेरे ख्याल से अगर समय है तो हम इसको ले ही लेते हैं, क्योंकि एक लिंक बनी रहेगी। 5 दिसंबर 1933 का है। एलिजाबेथ पैटरसन ने हर्बर्ट डेवी को और सर्कल एडिटोरियल कमिटी को एक सुंदर पत्र लिखा है। इफ वी हैव टाइम, कैन वी कंटिन्यू एंड टेक दिस लास्ट लेटर? Yes, I think there is time. Yeah, I think maybe a few minutes over is fine. So please continue, Jay Baba. In December 5th, 1933, Elizabeth Patterson to Herbert Davy and the Circle Editorial Committee, writing from New York to the Circle Editorial Committee at their office at 50 Charing Cross, London, Elizabeth Patterson reports on the American sales and distribution of Questions and Answers from Kitty Davy's papers. Dear Herbert and others, I want to let you know that there is real response to the booklet of Baba's Every Day. Oh, a booklet of Baba's. Every day, about 10 copies are sold. Those who come in the shop often stop and talk, saying what Baba has meant to them. I am sorry I have not the time to be there, as it would be interesting to see them. But fortunately, Mrs. Gorham has met Baba, and although only once, she seems to have a real appreciation. I have been encouraged by the sales to send out notices to Malcolm's out-of-town list, about 2,500 more, making a total of 7,500 notices to be sent out. I feel like the bridge of San Luis Rey. There must have been some reason why those people passed through the door of Malcolm's North Node to seemingly just buy a book. In any case, they are as good list as any, although the addresses in many cases are obsolete. I find in looking over the response to the notice Stokes sent out last year about Baba's coming that more out-of-town people replied than those in New York, and I am almost sure most of these had not met him. In any case, by the time all is finished, I will have a most up-to-date list which can be used for further work, because I have had a special mark put on the envelopes which requests the post office to furnish me with forwarding addresses when known. This is a new service of the post office here, and you pay the same fees as return postage guaranteed. Thank you. Okay. Yeah. See, this shows her dedication, sincerity, and the minute detailing of Baba's work and accomplishment of it. Really, that's a so Elizabeth का ये सुंदर पत्र है। वो लिखती है राइटिंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क, या न्यूयॉर्क से लिखती है, सर्कल एडिटोरियल कमेटी के वहाँ पर एड्रेस दिया है। और जो अमेरिका में इस किताब का, क्वेश्चन आंसर्स किताब का जो बिक्री हो रही है, इसके बारे में किटी डेवी सर्कल एडिटोरियल कमेटी को जानकारी दे रही है। वो लिखती है, एड्रेस करती है, डियर हर्बर्ट एंड अदर्स, सभी जो एडिटोरियल कमेटी के सदस्य है और हर्बर्ट जो उसका मुख्य है, उनको लिखती है कि वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि इस बाबा की किताब को अमेरिका में बहुत सुंदर प्रतिसाद है। हर रोज कम से कम 10 कॉपियां बिक रही है। और जो भी दोज हु कम, या कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप, या थैंक यू। जो भी शॉप में आते हैं, दुकान में आते हैं, वो रुकते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। और
बाबा उनके लिए क्या है ये भी वो बताते हैं, बाबा के बारे में बात करते हैं, कितना सुंदर ना। और वो कहती है कि मुझे खराब लगता है कि मैं चाहिए वैसा समय उनको देकर उनसे अच्छी बात नहीं कर सकती हूँ, हालांकि मैं ये सब जानना चाहती हूँ उनसे बाबा की बातें, लेकिन समय के मारे में टाइम नहीं दे सकती हूँ। और मिसेस गोहरम जो है, तो सुदैव से वो बाबा को मिली है, लेकिन एक ही बार मिले हैं, हालांकि एक ही बार वो बाबा को मिली है, फिर भी वो बाबा से कितनी प्रभावित हो गई है। शी हैज रियल एप्रिसिएशन फॉर बाबा। और वो कहती है कि ये बिक्री के लिए मैं बहुत प्रोत्साहन दे रही हूँ, और कई सारे नोटिसेस मतलब पत्र इस किताब के बारे में जानकारी देने के लिए वो लोगों को पत्र लिख रहे थे। देखो हम इतनी कोशिश करते हैं क्या। तो वो कहती है कि हम टू मालकम्स आउट ऑफ टाउन, तो मालकम शॉस जो थे, तो शहर से बाहर जो बाबा प्रेमी है उनकी लिस्ट उन्होंने दी थी, उन सबको उन्होंने पत्र लिखे हैं, नोटिसेस भेजे हैं। तो कम से करीब करीब 2500 उन्होंने शहर के बाहर के लोगों को इस किताब के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र लिखे या नोटिसेस उन्होंने यहाँ शब्द उपयोग में किया है, मतलब इसकी जानकारी देने के लिए। तो करीब करीब उसने 7500 इस प्रकार के पत्र भेजे। देखो इसका भेजने का खर्चा ही कितना आया होगा। यह मेहनत होती है, यह होता है बाबा का कार्य के लिए समर्पित करना, कि कम से कम हर एक के पास हमारा जाना चाहिए कि हमने ये किताब प्रकाशित की है, इतना इसका कीमत है, इसमें ये मुद्दे हैं, आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम हमको इस पत्ते में भेज दो। कि किस प्रकार का ये डेडिकेशन है। आई फील लाइक ये कहती है कि मुझे इसका ये अनुभव वो कहती है कि मुझे मुझे ब्रिज ऑफ सैन लुइस क्या है, ये बाद में प्रकाश जी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और वो कहती है कि ये मालकम जो है, इसके नॉर्थ नोड जो है, इसके द्वारा जो लिस्ट मिली है कि ये लोग उस तक पहुंच गए, और इसने ये लिस्ट दी है कि ये इसके द्वारा ये किताब खरीद सके, मतलब किसके द्वारा बाबा कैसा संपर्क करते हैं लोगों को, इसका एक ये उदाहरण है। वो कहती है कि कुछ भी हो, ये कई ये बहुत अच्छी लिस्ट है, हालांकि कई सारे लोग अब उस पते में नहीं रहते हैं। तो वो कहती है कुछ कुछ पते जो है वहाँ लोग नहीं रहते हैं, लेकिन आई फाइंड इन लुकिंग ओवर द रिस्पॉन्स नोटिस लास्ट ईयर बाबा इज कमिंग दैट मोर आउट ऑफ, कई सारे जो है बाबा आने के समय में वो भी इन लोगों को सूचित करते हैं, उनमें से कई जो है अभी शहर में नहीं है। और रिप्लाइड देन दोज इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क से शहर से भी बाहर रहने वाले लोगों ने उसको अधिक रिस्पांस दिया है। मोस्ट ऑफ दिस हैड नॉट मेट, और मुझे खातरी है कि इसमें से कई लोग जो बाबा को अभी मिले भी नहीं हैं, इस किसी भी हालत में ये सब कुछ ऑल इज फिनिश्ड, आई विल हैव ए मोस्ट अप टू डेट। वो कहती है कि मैं अभी और एक अप टू डेट लिस्ट बनाऊंगी दूसरे कार्य के लिए जो हमें उपयुक्त होगी, बाबा के आने की खबर हो, दूसरा पब्लिकेशन की जानकारी के लिए हो। तो देखो साथ ही में वो लिस्ट को भी अपडेट कर रही है, और बहुत सराहनीय कार्य है ये उनकी तरफ से। और वो कहती है कि देखो पोस्ट ऑफिस में जैसा होता है ना, कि कोई अपना ठिकाना छोड़ के गया है तो पोस्ट से या तो पत्र वापस आता है कि नॉट फाउंड आउट, तो वो भी वो नोट कर रहे हैं। साथ में पोस्ट में एक खास सुविधा होती, पत्र रीडायरेक्ट होता है, अपने यहाँ हम उसको क्या कहते हैं कि रीडायरेक्ट होता है, तबादला होता है, कई लोगों की ट्रांसफर होती है, तो कई जगह पर हम नया अपना एड्रेस नहीं दे सकते हैं, तो वो पत्र वही एड्रेस में जाता है, तो वो क्वार्टर्स वाले या ऑफिस वाले उसमें क्या करते हैं, अब ये दूसरी शाखा में ट्रांसफर हो गया, तो वो क्या कहते हैं उसको रीडायरेक्टेड टू। तो उसी खर्चे में नया पोस्टेज का खर्चा किए बिना वो पत्र नए पते पर पहुंच जाता है। तो किटी टीवी किस हद तक गई लिस्ट को अपडेट करने के लिए, किस हद तक गई देखो, उसने पोस्ट ऑफिस को भी विनती की कि जो ऐसा रीडायरेक्ट आपको नया पता मिलता है
तो वो नया पता भी, न्यू एड्रेस भी हमको सूचित करे, ताकि हम अपनी लिस्ट में वो नया एड्रेस इनकॉर्पोरेट करेंगे। कितना मतलब इसको बोलते मेहनत से, पूरे तहे दिल से बाबा का काम करना। तो इस प्रकार से वो अपनी लिस्ट को भी अपडेट कर रही थी। और इसने ये भी कहा है कि इसमें ये पोस्ट का कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता है। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुली शी वाज डूइंग, यस, ऑन द सेकंड 2500। On the second 2,500 notices, I had a special imprint stating that orders could be taken for the second booklet, Sayings of Sri Baba, which Kitty writes are ready. I have wired you to send 500 copies, for I think we can sell them if they arrive before Christmas. I thought first of needing 1,000, but the shipping might be expensive, and maybe someone will be coming over later. Also, I do not think we can sell more than that for some time. If I were not so busy with my own business and buying Baba's equipment, then I might go around to other bookstores for distribution. It takes personal effort and explanation, and I have been swamped so far. Please see that the 500 booklets reach me as soon as possible, for they can be shown to the people who come in to buy the questions and answers. In any case, all purchasers have their name and address taken, so the re-solicitation can be more among the interested, and this will save the big expense of future postage, which is quite an item. I think I should have charged more than 15 cents a copy for the booklets, but Baba wanted them sold as cheaply as possible, and the list is valuable to obtain for his whole work, not only for the booklet advertising. The last 2,500 notices will also get out without a special notation, So, although it is mentioned in the text of the circular. Okay, thank you, Betty. You are tired. So, यहाँ पर वो आगे ब्यौरा देती है एलिजाबेथ पैटरसन की दूसरी 2,500 नोटिसेस भी मैंने स्पेशल उसका प्रिंट करके भेज दी है कि उनसे दूसरा जो बुकलेट अभी आने वाला है, मतलब ये किताब का वितरण, उसका बारे में सूचना देना, और आगे का किताब के बारे में भी वो अभी से लोगों को सूचित कर रहे। सेइंग्स ऑफ श्री मेहर बाबा, हमने वो भी इसमें किताब में पढ़ा था, तो इसकी जानकारी भी उसने 2,500 लोगों को दी है। और ये कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें टेलीग्राम भेजा है कि मुझे 500 प्रतियां भेज दो। हालांकि मैं 1,000 प्रतियों के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चिक होगा और पोस्टेजेस का भी खर्चा होगा, इसलिए अभी मैंने 500 ही प्रतियां मांगी है। और आई डू नॉट थिंक वी कैन सेल मोर देन, और मैं नहीं सोचती हूँ कि 500 के से ज़्यादा हम बेच सकेंगे। मैं अपने कार्य में और बाबा के इक्विपमेंट वगैरह के बारे में अगर इतनी बिजी नहीं होती थी, तो मैं खुद बाहर जाके बाकी जो बुक स्टोर्स है इनमें भी इन प्रतियों को बेचने के लिए रखती थी। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है, और जाकर के उनसे बात करना जरूरी है, वो शॉपकीपर के साथ उनको एक्सप्लेन करना है बाबा के बारे में। This is a very, very important point. None of us takes efforts for this. Whenever we are publishing any book or getting it printed, we are trying only to sell to the Baba lovers, but we should try to take it to non-Baba lovers as well. How we can take them? Now you can also contribute. And we have tried and we have done this. See, there are colleges, libraries, institutions. Approach them, take a permission from a principal, and donate 5 or 2, whatever is there, 5, 10, 2 copies, free of charge. You be ready to donate to their library any book of Baba's. If we want to take Baba too many, as Baba wishes, and Baba says this is his work,
So we have to approach to the libraries, central library, library of the city, and take their permission. We are not selling them. The expenses will be borne by us. We'll donate that copy to them. They have to keep in their library or that city library or the college library. They have to just keep it in their library for the reading. 90%, if we are not selling them, 99% they agree to keep the copy. This I have done in Ahmednagar. There is a Ahmednagar city library. I contacted the head of that library, whoever secretary. They agreed to keep the copy. I requested Mr. Jungle. I told him, if you want, I will make the expenses, but he said, no, I will buy on my own. And he took all those 5 books and went there personally, Mr. Jungle, to that Ahmednagar City Library. And those books were kept in the library for the reading for the whole who are coming there. In the same way, we can approach to the bookstalls. And we can explain them, this book is important. If people, you keep it 2 or 4 or 5, whatever copies. We should make the effort to take Baba to the masses. Likewise, each one of you, if it is possible, at least approach 1 or 2 booksellers. It is easier in abroad than in India. India also, Ahmednagar, I approached one shopkeeper. He had agreed to keep the books. And Kishore Bhoja, I told him, because I am in Bombay. And I told him, you take these books, I'll pay the charges, and you keep it, give it to the shopkeeper to keep in his shop for the sale. If he pays back us, fine. If he do not pay, we will take it as donation. No problem. So likewise, this is the important point Elizabeth has mentioned here, that we can go to the bookstalls also. Personally, we have to give time, explain them. We have to do the personal effort. Only then that shopkeeper will keep our books to sell. तो यहाँ पर एलिजाबेथ पैटरसन ये कहती है कि बुक स्टॉल्स में जाकर भी बाबा की किताबें रखनी चाहिए बिक्री के लिए, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। और वो मेरे पास अभी नहीं, मैं दूसरे काम में अगर व्यस्त नहीं होती थी तो मैं स्वयं जाके बाबा के बारे में एक्सप्लेन करके ये किताबें वहाँ बेचने के लिए रख सकते थे। फिर आगे वो लिखती है कि प्लीज सी दैट भाई, जितना जल्द हो 500 बुकलेट्स मुझे ताबड़तोड़ भेज दो, can be shown to the, ताकि मैं वो, can you please take up the page, मैं वो लोगों को दिखा सकूंगी और ये उनको प्रेरित कर सकूं ये किताब खरीदने के लिए। किसी भी हालत में कि जो खरीदने वाले हैं उनके नाम, पते, ये भी ब्यौरा वो अपने पास रख रही है कि जो इसमें इंटरेस्टेड है, ताकि आगे उनको सूचना देने का खर्चा बच जाएगा, दूसरा कोई पब्लिकेशन के बारे में उनको बताया जाएगा। और वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 सेंट में एक कॉपी का, क्योंकि इतना खर्चा किया उसने, नोटिस भेजा, उनको पहुंचाना है, कुरियर का चार्जेस है, तो एक किताब का मैं तो 15 सेंट रखती थी। लेकिन बाबा चाहते थे कि ये कम से कम दाम में बिका जाए, सस्ते से सस्ते दाम में बिका जाए। तो ये जो पोस्टेजेस है, नोटिसेस है, वो अपने खर्चे से ये कर रहे हैं, किताब में से वो खर्चा नहीं निकाल रहे हैं। और वो कहती है कि बाबा के जो प्रेमी है उनके पास किताब पहुंचना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं है। तो वो कहती है 2500 नोटिसेस अभी भेजी है सेइंग्स के लिए, आगे के किताब के लिए, और कोई ज्यादा नोटेशन नहीं है इसमें से 2500, although it is mentioned in the next of the circular. Yes. Shall we continue and close? Yeah. Enclose is just close? one paragraph only, then we'll conclude Okay. today's section. All Yeah. right. Enclosed is a letter from the Library of Congress, which please reply in full. I have acknowledged the receipt and said that the New York Public Library has the works listed under Meher Baba and that Shri is a spiritual title.
but I do not know about the secular names, as there are different mentions in various publications, just as there are various birthdays. Baba, however, definitely told Narina that his birth date was February 19th, so that point is certain. Therefore, I leave the reply to you. Malcolm and Jean are working on this California list, but it is not quite out yet, so I do not know as to the response there. Please always let me know in advance of publications. As always, Elizabeth. थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर वो कहती है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से एक पत्र मिला जो उसने स्वयं एक्नॉलेज किया है, तो वो कहती है इस लेटर का तुरंत जवाब दे दो। और आगे वो लिखती है न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी हैज द वर्क्स लिस्टेड अंडर। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो है, जैसे अभी हमने बात की, तो इनके पास भी पूरी लिस्ट है मेहर बाबा का जो भी कार्य है। और इसमें जो टाइटल है श्री, तभी बाबा को श्री मेहर बाबा कहा करते थे। वो कहती है कि इसके लिए क्या कहना है, एक निधर्मी सैल्यूटेशन श्री के लिए क्या लिखना है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि पाश्चात्य में ये श्री है नहीं, तो उसको श्री कहा जा सकता है। तो वो कहती है वो निधर्मी टाइटल क्या है मैं नहीं जानती हूँ, जैसे कि विविध नाम रहते हैं, विविध बर्थडेज रहते हैं पब्लिकेशन में, तो ये भी ऐसा रहता है, तो इसमें मैं जानती नहीं है। और बाबा, वो कहती है कि बाबा ने निश्चित रूप से नोरिना से कहा है कि उनकी जन्म तारीख 19 फरवरी है, इतना मैं जानती हूँ। तो कई बार जैसा है ना, शिवाजी महाराज की डिफरेंट डिफरेंट बर्थडेज है, तो ये एक होती है कैलेंडर के हिसाब से, एक होती है तिथि के हिसाब से, वो तिथि वाली बदलती रहते हैं। तो आगे वो कहती है ये माल्कम शॉल्स और जीन एंड्रियल जो है वो कैलिफोर्निया की लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो अभी तक बाहर आई नहीं है। उसके बारे में क्या प्रतिसाद है मैं जानती नहीं है। और इस कोई भी पब्लिकेशन हो, प्रकाशन हो, तो मुझे उसकी जानकारी जरूर देवे, ऐसा एलिजाबेथ पैटरसन कहती है। आगे इसने यहाँ पर पत्र को समाप्त किया है। सो यहाँ आज हम भी रुक जाते हैं, समय ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बेटी, दैना, प्रकाश जी, एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। की जय। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ चर्चा करना है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम आरती लेते हैं। सुषमा जी को कहेंगे आज आरती के लिए। जय बाबा। ये क्या हो गया? Baba. Thank you. So interesting, these letters. Wow. Oh, thank you so much, Mayor Krupa. So interesting. All right, I will stop the recording.